Welcome everyone. My name is Nakash Yusuf and my team members are Kaniz Fatima, Umair Hussain and Usama Iqbal. We are going to start the chapter number 5. We are presenting our topics in which I will cover what is a transaction consistency, its properties, management, and its algorithm, which is a log-based algorithm. And Kanizma Fatma will present the time lapse algorithm, and the further Usama and uh, Umair will also contribute with me in algorithms. Now I will start. The concept of transaction is used in database systems as a basic unit of consistent and reliable computing. Transaction ensure that database consistency and durability are maintained when concurrent access occurs to the same data atom when failures occur. It has the two terms, database consistency and transaction consistency. Database consistency, we want to ensure that database never enters in inconsistent state. When it's temporary inconsistent state, during execution of the transaction, it should be consistent when transaction terminates. जब ट्रांजैक्शन जो है वो एंटर होगी तो वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में हो सकती है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कंसिस्टेंट स्टेट में होगी. ये इसकी डायग्राम है. ये ट्रांजैक्शन जो है स्टार्ट हो रही है, बिगिन ट्रांजैक्शन टी जो है, ये टी ट्रांजैक्शन जो स्टार्ट हो रही है, ये इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, और एट द एंड जो है वो ट्रांजैक्शन टर्मिनेट हो रही है. ड्यूरिंग जो इसके जो टेम्परेरी स्टेट है इनकंसिस्टेंट की, जब ये ट्रांजैक्शन जो टर्मिनेट हो जाएगी तो ये कंसिस्टेंट स्टेट में होगी. नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी. It is on the other hand referred to the operations of concurrent transactions. इनकी आगे further terminologies हैं. Each transaction begins with a transaction command, include a series of read and write operations, and end with either commit or an abort. ट्रांजैक्शन का जो है वो बेस सेट होता है, जो कि एक इसकी दो स्टेट्स होती हैं, एक रीड स्टेट होती है और एक राइट स्टेट होती है. रीड स्टेट जो है और राइट स्टेट है, इन दोनों का जो एक सेट बनता है वो यूनियन सेट कहलाता है, बेस सेट जो है. आगे फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज इसकी चार प्रॉपर्टीज है: एटॉमिसिटी, इंसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी. Let's start with atomicity. Atomicity ensures that transaction executions are atomic. Either all of the actions of a transaction are reflected in the database or none of it are. Consistency refers to the transaction begin a correct execution. The transaction code is correct when it executes the database that is consistent. It will leave it is in the consensus state. Isolation indicates that the effect of the concurrent transactions are shielded from each other until they commit. This is how the correctness of the concurrently execution transaction are ensured. Durability. Durability refers to the property of transaction that ensures that the effect of committed transaction on the database are permanent or will survive system crashes. Concurrency control algorithm enforce the isolation property and leaves the database in consistent state. इसका जो algorithm है वो concurrency control algorithm है, जो कि database को enforce करता है कि वो isolation state में रहे
और फिर डेटाबेस को लीव कर जाता है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, when a transaction commits its action need to be made permanent, it uses logs where each of the transaction is recorded. The commit protocol ensures that database updated as well as logs are saved. Abort protocols use the logs to erase all actions of the aborted transaction from the database. When recovery from system crashes is needed, the logs are consulted to bring the database to the consistent state. We have distributed execution monitor. Consists of two modules, transaction manager and scheduler. And third dimension of it is local recovery manager. And transaction manager क्या होता है? Transaction manager is responsible for coordinating the execution of the database operations on behalf of an application. And scheduler, on the other hand, is responsible for the implementation of specific concurrency control algorithm for synchronizing access to the database. ये इसकी डायग्राम है जो कि ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड स्केजुलर जो है वो ट्रांजैक्शन को किस तरह कंट्रोल करता है। ये स्टार्ट पे जो है वो ट्रांजैक्शन जो है स्टार्ट होती है, उसमें एक जो है रीड स्टेट, राइट स्टेट है, कमेंट स्टेट है, अबॉर्ट स्टेट है। ये ट्रांजैक्शन जब इस परफॉर्म होती है तो इसे मॉनिटर जो है वो एक्सेस कर रहा होता है और इसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र होता है आगे स्केजुलर में। स्केजुलर जो और ट्रांजैक्शन मैनेजर है, ये दोनों आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, जो कि फिर इस तरह ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया जाता है। Next, the execution of the database operations of transaction is coordinated by the TM. TM is transaction manager. Transaction manager have 5 states: begin transaction, read state, write state, commit, and abort. And what is begin transaction? This is an indicator to the coordinating transaction manager that a new transaction is starting. Read state, if the data item is stored locally, its value is read and returned to the transaction. Otherwise, the coordinator transaction manager find where the data item is stored and request its value to the return. And write state, if the data item is stored locally, its value is updated. Otherwise, the coordinating transaction manager find where the item is located and requests that update to carry out at that site. Commit, the transaction manager coordinates the sites involved in updating data items on behalf of this transaction. Abort state, the transaction manager makes sure that no effect of the transaction are reflected in any of the database at the site where it updated data items. Distributed concurrency control algorithm. We have the example here, the two bank accounts where T1 बैंक अकाउंट्स जो है वो एक X है और एक Y है, and X transfer $100 to Y, and transaction is T1 and T2. X जो है इसमें $100 जो है वो इसने सेंड करने हैं Y को, और Y ने जो है ये ट्रांजैक्शन को रीड करना है और इसको नोट डाउन करना है, और इसी तरह जो है X है वो $100 को अपने अकाउंट से माइनस करेगा और उसको नोट करेगा, उसको रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। सेम वे यही प्रोसेस जो है वो T2 की तरफ भी होगा, I mean Y की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पहले जो हम $100 जो है वो X जो है Y को सेंड करता है, Y जो है उसको रीड करता है,
और फिर उसको अपने पास राइट करता है, जबकि वाई के पास जो है जस्ट रीड हो रहा है। हमें ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्यूशन के लिए हमें एक एल्गोरिदम चाहिए जो कि वो ट्रांजैक्शन को रीड करे और राइट। कंकरेंसी कंट्रोल की जो है वो 3 डिमेंशंस होती हैं। आइसोलेशन लेवल है, और फर्दर इस पे ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होते हैं। एंड थर्ड जो है वो ट्रांजैक्शन को कैसे सीरियलाइज किया जाए। लॉकिंग बेस्ड एल्गोरिदम जो है हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने जो है ट्रांजैक्शंस को हमने दोनों तरफ जो है नोट डाउन करते हैं, और दोनों को हमने इस फॉर्म में नोट डाउन करना है कि पहले उसको रीड करे फिर उसको राइट करे। लेकिन जो T2 में हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी कि जो Y है वो उसकी ट्रांजैक्शन में जस्ट रीड हो रहा है। इस चीज़ को जो है इसकी प्रॉब्लम को हमने सोल्यूशन के लिए हमने ये लॉकिंग बेस्ड एल्गोरिदम है। लॉकिंग बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास क्या है जी, लॉकिंग बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम प्रिवेंट्स आइसोलेशन वायलेशन बाय मेन ट्रेनिंग अ लॉक फॉर ईच लॉक यूनिट एंड रिक्वायरिंग ईच ऑपरेशन टू obtain a lock on the data item before it is accessed either in read state mode or write state mode. The operation access request is decided based on the compatibility of lock modes. Read lock is compatible with read lock. A write lock is not compatible with either a read or a write lock. The fundamental decision in distributed locking based concurrency control algorithm is where and how the lock are maintained. ये इसकी छोटी सी डायग्राम है, इसमें वो बता रहा है कि ट्रांजैक्शन जो है वो जब स्टार्ट होगी तो उसके बाद जो है वो इसको लॉक करेगा, और जब ट्रांजैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो लॉक जो है वो रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंट्रलाइज टू टू फेस लॉकिंग है, जिसकी जो है ये इसकी डायग्राम है, इससे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज दिस। हमारे पास एक साइट है हमारे पास डेटा प्रोसेसर की, एक साइट है हमारे पास पार्टिसिपेशन ट्रांजैक्शन मैनेजर की। और ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है इसमें कोऑर्डिनेट कर रहा रहता है। फर्स्ट हम पहले इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि रिक्वेस्ट को जो है वो लॉक किया जाए, फिर उसका रिस्पांस आएगा हमारे पास के ट्रांजैक्शन जो है वो ग्रांटेड हो गई है, लॉक हो गई है। उसके बाद हम ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन जो है फोर्थ स्टेप में ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है फिफ्थ में लॉक जो है रिलीज हो जाएगा। ये 5 हमारे पास जो है ये टपल्स हैं, इनकी बेस पे हम जो एक ट्रांजैक्शन जो है वो परफॉर्म की जाती है। The communication is between the coordinating transaction manager, the locking manager at the central side, and the data processor at the other participating sites. ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये ओ ओ डॉट टाइप जो इसका यूनियन सेट है वो BT RWA&C। वो जो है वो हमारे पास ऑपरेशन है, जो कि BT है हमारे पास ये बिगिन ट्रांजैक्शन है, R जो है हमारे पास रीड है, W जो है हमारे पास राइट है, A जो है हमारे पास अबाउट है, और C जो है हमारे पास कॉमिट है। इन सब का जो यूनियन सेट है वो ऑपरेशन में जाके बनता है, जो आके हम एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये सेंट्रलाइज जो है ये हमारे पास ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है टू फेज लॉकिंग ट्रांजैक्शन मैनेजर एल्गोरिदम है। ये इसके बाद जो है हमारे पास ये सेंट्रलाइज लॉक मैनेजर का एल्गोरिदम है।
और इसमें जो थर्ड है हमारे पास डेटा प्रोसेसर का एल्गोरिदम है। सेंट्रलाइज टू फेस लॉकिंग में हमारे पास जो जब मैसेज आता है तो ये मैसेज को जब रीड किया जाता है तो फिर उसके बाद हम ये स्विच केस परफॉर्म किया हुआ है हमने, उसमें हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो उसने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। अगर तो ये ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है तो इसको फिर वो लॉक मैनेजर के पास भेजेगा। अगर ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है तो उसमें फिर हम जो डेटा प्रोसेसर जो है वो इसको रिस्पॉन्स करेगा। और उसके बाद जो है हमारी ट्रांजैक्शन जो है परफॉर्म हो जाएगी और हम इसको फिर हमारा एल्गोरिदम इसमें ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो है आगे लॉक मैनेजर है, ये फर्दर उसमें बताया हुआ है कि लॉक मैनेजर के पास जब ये ट्रांजैक्शन आएगी तो लॉक मैनेजर क्या करेगा। लॉक मैनेजर जो है वो इसको जब इसके पास ऑपरेशन आएगा, ट्रांजैक्शन आएगी तो ये इसको एक्सेप्ट करके लॉक लॉक को परफॉर्म कर देगा और जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये फिर लॉक को रिलीज कर देगा। सेम वे जो ये डेटा प्रोसेसर है, डेटा प्रोसेसर का क्या काम है कि ये इसको रीड करता है। जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो इसको फिर रीड करेगा, इसको राइट करेगा और फिर सेम वे कमिट और इसको अबाउट का प्रोफेशन परफॉर्म करेगा। इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है हमारे पास अ, वो आ जाएगा लॉकिंग मैनेजर जो है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो है वो जब इसमें जो है हम दोनों साइड्स पे लॉक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड में हर साइड पे लॉक जो है वो उसको प्लेस किया जाएगा। इसमें जो है हम लॉक की जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लेकिन जब लॉक की जो ग्रंटेड रिक्वेस्ट है रिस्पांस आएगा हम उसका वेट नहीं कर रहे होते। जबकि सेंट्रलाइज में हम उसका वेट कर रहे होते हैं। जो हमारे पास जो एक स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या हो रहा था हमारे पास कि हम उसका वेट करते थे जब लॉक जो है वो ग्रंटेड हो जाएगा तो हम फिर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें जस्ट हम जो है लॉक की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म होगा सेकंड स्टेप में। और फोर्थ थर्ड स्टेप पे हमारा जो ऑपरेशन है वो एंड हो जाएगा, फोर्थ में जो है वो लॉक रिलीज हो जाएगा। ये 4 टपल्स में हो रहा है, वो 5 टपल्स में हो रहा था। उसमें जो है वो सेकंड स्टेप ये था कि उसमें हम लॉक जो है वो गारंटीड कर रहे थे, इसमें जो है वो रिक्वेस्ट नहीं है। इसमें दो डिफरेंस है। नो वेट फॉर लॉक रिक्वेस्ट गारंटीड एंड मैसेज सेंड टू ऑल लॉक डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास वो हर हर साइट पे जो है वो लॉक होगा। इसमें हम एक ही रिक्वेस्ट जो है वो सबको सेंड कर देंगे, जबकि सेंट्रलाइज में जस्ट हमारे पास एक ही लॉक था, उसका हम वेट करते थे और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म होते थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक इस एल्गोरिथम में जो है हमारे पास एक इशू ये आ जाता है कि हमारे पास डेड लॉक होता है और डेड लॉक का जो हमें है वो किस तरह पता चलेगा कि डेड लॉक जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है इस सिस्टम को कि नहीं। Locking based concurrency control algorithm may cause deadlocks. It is due to transaction executing at different sites, waiting for each other. WFFG used for detection. Waiting WFFG is stand for uh, waiting for graph. ये इसकी पिक्चर्स हैं जो कि एक साइड पे जो T1 है, T2, सेकंड साइड है T4, T3 और दूसरी साइड है इसको हमने सबको जो है वो अटैच कर दी ओएस सेंट्रलाइज में, जो कि फिर हमें अब बताता है कि डेडलॉक अक्कर हुआ है कि नहीं। जो कि अगर T1 T2 को जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है और उसका डाटा जो है वो वापस जो है T2 का T1 को जाएगा। अगर डेडलॉक अक्कर हो रहा होगा तो हमें फिर उसी तरह रिस्पॉन्स आ जाएगा और हमारी ट्रांजैक्शन में भी ब्रेक हो जाए। इसमें जो है आगे सेंट्रलाइज्ड डेडलॉकिंग है, उसमें आगे हायरार्की डेडलॉकिंग है और
थर्ड जो है हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉकिंग। सेंट्रलाइज जो है डेडलॉकिंग जो है उसमें एक ही डेडलॉक के लिए जो लॉक लगाया जाता है उस जो कि डिटेक्ट करता है डेडलॉक को, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसमें जो है डिज़ाइन फॉर एंड्रॉयड सिस्टम होता है। हियरार्किकल जो है डेडलॉकिंग जो है उसकी हर एक साइट के ऊपर जो हर टर्मिनल के साथ जो है उसको डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाता है। ये हियरार्किकल डेडलॉक डिटेक्शन की साइट है जो कि साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3 है एंड साइट 4। और इसकी जो है वो हर टर्मिनल के साथ जो है इसकी जो है वो साइट 1 के साथ जो है, साइट 2 के साथ, साइट 3 के साथ, साइट 4 के साथ जो है वो डेडलॉक की डिटेक्शन के लिए डिकोडर हमने अटैच किया हुआ है। जो साइट 1 जो 21 है, डबल डी 21, ये आगे ट्रांसफ़र होगा डबल डी 11 को। सेम इसी तरह जो है डबल डी 22 जो है ये भी ट्रांसफ़र होगा 11 को। अगर यहाँ पे डेड लॉकिंग होती है 21 साइड पे तो ये डिटेक्ट होगी 11 पे। सेम इसी तरह अगर 22 पे डेड लॉकिंग अगर होती है तो वो हमें 11 पे पता चलेगा। सेम इसी तरह अगर साइड 3 पे 23 पे जो है वो डेड लॉकिंग अगर होती है तो हमें 12 पे पता चलेगा। और सेम वे जो है 24 की डेड लॉकिंग जो है वो 12 पे हम उसको क्लिक कर सकते हैं। और 12 की 11 की आगे जो है फर्दर जो है हम 0 पे उसको डिटेक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड जो है डेड लॉकिंग वो क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डेड लॉक detection algorithm require uniform modification to lock manager at each side and easier to implement. सेंट्रल में जो है वो हमें हर एक को जो है वो अटैच करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक डेड लॉक जो है हम उसको अटैच करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमने हर साइड के ऊपर जो है वो डेड लॉक जो है वो एंगेज कर दी हुई है, जिसकी वजह से हमें हर साइड का पता चल जाता है। इसके बाद जो है फर्दर जो है नो आई वुड लाइक टू कॉल कनीस फातिमा, ही विल एक्सप्लेन द फर्दर। Okay, thank you, Nakash. Assalamu alaikum. Further, I will explain, share my screen. Kindly tell me that my screen is clear to all of you. Yes. Okay, thank you so much. Okay, my topic is timestamp ordering algorithm. Okay, first of all, we have to know that what is timestamp. टाइम स्टेप एल्गोरिथम तो है, बट टाइम स्टैम्प का वर्ड क्या है, इस चीज को हम लोगों ने पहले अंडरस्टैंड करना है। टाइम स्टेप मीन्स टू असाइनिंग द यूनिक वैल्यू टू एवरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक कोई भी प्रोसीजर होता है जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके बाद जो वो पूरा प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है। एंड टेल्स द ऑर्डर। अब टाइम स्टैम्प क्या होता है कि हमारे पास कोई भी हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर देते हैं यूनिक वैल्यू की ट्रांजैक्शन को, जिसके बाद हम लोगों को उसका ऑर्डर पता चलता है। अब टाइम स्टैम्प के थ्रू क्या होता है कि कोई भी डेडलॉक अकर नहीं होता। टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल,
बेसिकली है क्या? द टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल इन DBMS इज एन एल्गोरिथम which uses the system time or logically counter as a timestamp to serialize the execution of concurrent transactions. The timestamp based protocol ensure that every conflicting read and write operation are executed in a timestamp order. बेसिकली टाइम स्टैम्प के अंदर क्या होता है कि हम लोग कोई भी यूनिक वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आती है उनके अंदर कोई डेडलॉक क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, जोन सी पहले ट्रांजैक्शन आती है उसको अगर हमने टाइम स्टैम्प 10 असाइन किया हुआ है, सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारे पास आई है तो उसको फौरन से हम जो टाइम स्टैम्प दे देंगे 20, ठीक है। जब हम इस तरीके से असाइन करते जाएंगे तो जो ऑर्डर होती है हमारे पास, यानी कि जो पहले आई होती है, ठीक है, वो हमारे पास एग्जीक्यूट पहले होती है, जो उसके बाद आई होती है वो हमारे पास सेकंड पे एग्जीक्यूट होती है। तो जो ओल्डेस्ट हमारे पास वैल्यू होती है, जो स्मॉलर होती है, वो पहले एग्जीक्यूट होती है। ईच ट्रांजेक्शन इज इशूड अ टाइम स्टेप व्हेन इट एंटर द सिस्टम। अब ये टाइम स्टेप हमारे पास असाइन हम कब करते हैं? जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे पास सिस्टम में एंटर होगी, उसी वक्त हमारे पास उस ट्रांजेक्शन को टाइम स्टैम्प अलाउ कर दिया जाएगा, असाइन कर दिया जाएगा। द ओल्डर ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी इन दिस मेथड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ओल्डर वन होगी उसको हम लोगों ने प्रायोरिटी देनी है, यानी कि वो पहले एग्जीक्यूट होगी, और जो यंगर होगी, ठीक है, वो उस ओल्डर के बाद उसको प्रायोरिटी मिलेगी। It uses system time to determine the timestamp of the error transaction. This is the most commonly used concurrency protocol. अब ये concurrency control के अंदर ये प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज इसलिए होता है कि इसके अंदर कोई भी डेडलॉक नहीं होता, और इसके अंदर बहुत एक सीरियलाइज्ड और एक सीक्वेंस के साथ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास सपोज देयर आर 3 ट्रांजेक्शन T1, T2 एंड T3। हमारे पास स्क्रीन ट्रांजैक्शन एंटर हुई, ठीक है, एट अ टाइम। T1 को जब हमारे पास 1 सेकंड पहले इसको हमने टाइम असाइन कर दिया 10, T2 को हमने टाइम असाइन कर दिया 20 एंड T3 को हमने टाइम असाइन कर दिया 30। तो प्रायोरिटी क्या होगी कि हमारे पास ओल्डर वन कौन सी होगी? T1, आफ्टर दैट यंगर जो होगी T2 एंड यंगेस्ट होगी T3। तो हमारे पास ओल्डर को प्रायोरिटी मिलनी क्योंकि पहले T1 आई थी, तो T1 हमारे पास पहले एग्जीक्यूट होगी, देन अब हमारे पास T2 एग्जीक्यूट होगी, और लास्ट पे हमारे पास T3 एग्जीक्यूट होगी। अब टाइम स्टैम्प के अंदर हमारे पास जो होते हैं इम्पोर्टेंट स्टैम्प्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, रीड और राइट का। अब द प्रोटोकॉल मैनेजेस concurrent execution such that the timestamp determine the serializability order by maintaining for each data item queue 2 step values. अब हमारे पास राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है कि द लास्ट एंड लेटेस्ट ट्रांजेक्शन नंबर विच परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूट राइट सक्सेसफुली, यानी कि हमारे पास जो लास्ट पे, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी कि T1, T2, T3 था, उसके अंदर हमारे पास एग्जीक्यूट तो पहले T1 होगी, फिर T2 और फिर T3। अब हमें अगर कहा जाता है कि हमने जो राइट टाइम स्टैम्प है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो लास्ट पे हमारे पास ट्रांजैक्शन रिसेंटली अपडेटेड जो हमारे पास एग्जीक्यूट हुई होगी ना, वो हमारे पास वैल्यू होगी। अब आपने देखा होगा कि जो लास्ट वाली थी ना, उसकी वैल्यू, टाइम स्टैम्प की वैल्यू T3 की जो वैल्यू थी वो 30 थी, हमने असाइन की हुई थी। तो हमारे पास ऑब्वियसली अगर उसने हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी ऑपरेशन आया है, अगर हम लोगों ने राइट जो है वो हमारे पास T1, T2, T3 है, उसने T1 को पहले एग्जीक्यूट किया, ठीक है, उसने हम लोगों को कहा कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है राइट का T1 पे, ठीक है। अब T1 की वैल्यू 10 थी, फिर उसने कहा कि ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है T3 पे, T3 की वैल्यू 30 थी। देन उसने कहा कि T2 की उसने राइट परफॉर्म करवाया। तो अब जो लास्ट वाला जो राइट परफॉर्म हुआ था ना, वो T2 था 20। अपडेटेड जो एग्जीक्यूशन हुई थी ऑपरेशन की, वो T2 की थी, और T2 की जो टाइम स्टैम्प की वैल्यू थी वो 20 थी। तो इस तरीके से हमारे पास जो W की वैल्यू आ गई वो हमारे पास 20 होगी, यानी कि जो रिसेंटली ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा ना राइट का, वो जो वैल्यू होगी वो हमारे पास राइट टाइम स्टैम्प होती है। इसी तरीके से रीड टाइम स्टैम्प होती है द लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर विच परफॉर्म्ड और एग्जीक्यूट रीड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे पास जिस तरीके से रीड का ऑपरेशन पहले अगर T1 पे हुआ है, देन T2 पे हुआ है, और देन T3 पे हुआ है,
या आप ऐसे कर लें कि पहले रीड का ऑपरेशन T3 के ऊपर हुआ, फिर T2 के ऊपर हुआ और उसके बाद T1 पे। तो हमारे पास लास्ट पे किस पे हुआ था? T1 पे। तो T1 रिसेंटली वाला था, तो T1 की वैल्यू 10 थी, तो हमारे पास जो रीड ऑपरेशन की वैल्यू आई वो T की जो 1 की वैल्यू थी 10, तो R 10 हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जो हमारे पास बेसिक रूल होते हैं। द टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इंश्योर दैट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन आर एग्जीक्यूटेड इन टाइम स्टैम्प ऑर्डर। ये जो पूरा एक प्रोसीजर होता है ये एक ऑर्डर में जाता है। इन द बेसिक टीओ एल्गोरिथम द कोऑर्डिनेटिंग टीएम असाइन द टाइम स्टैम्प टू ईच ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द साइट where each data item is stored and sent to the relevant operation to these sites. It is the straightforward implementation of the TO rule. हमारे पास जब ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो उसके हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रीड और राइट का आता है, ठीक है। या रीड का हो तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, ठीक है। रीड में अगर हमारे पास हो तो राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है, और राइट अगर हमारे पास ऑपरेशन हो तो उसका रीड और राइट दोनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है। बेसिकली टाइम स्टैम्प हमारे पास यूज ही इन दोनों रीड और राइट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसको रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब इसके लिए रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेशन या टी इश्यूज अ रीड ऑपरेशन, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, लाइक तो अगर फॉर एग्जांपल T1 ने कहा, T1 और T2 दो ट्रांजैक्शन थी, T1 ने कहा कि सेंड की अपनी रिक्वेस्ट सेंड की कि उसने रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद हमारे पास परफॉर्म की T2 ने रिक्वेस्ट की कि उसने भी रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब रीड और रीड होगा तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से राइट और राइट होगा तो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा? जब T1 ने रिक्वेस्ट की पहले कि हमारे पास T1 कि मैंने पहले रीड करना है, ठीक है। T1 ने रिक्वेस्ट कर दी रीड करने की। अब T2 बाद में आया था, T2 ने बाद में की कि मैंने राइट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिलेगी कि T1 अपना एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद जो राइट रिक्वेस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो T2 पे हो जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा? जब T2 बाद में आया है और T1 पहले था। अब T2 ने हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड कर दी कि उसने क्या परफॉर्म करवाना है, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, और उसके बाद T1 ने भी हमें रिक्वेस्ट सेंड कर दी कि उसने भी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, राइट का। अब जब T1 को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, अभी तो हम रीड की बात कर रहे हैं ना, तो T2 ने रिक्वेस्ट भेज दी कि उसने रीड करवाना है, T1 ने भी भेज दी। अब अगर पहले T2 ने भेजी और फिर T1 ने, लेकिन T1 पहले आया है तो हमारे इस टाइम स्टैम्प के अंदर होता ही है कि पहले जो आता है प्रायोरिटी उससे ही मिलती है, बट ऑपरेशन पहले T2 ने दिया हुआ था रीड का। तो अब क्या होगा? उसके लिए रूल होता है, वो चेक करेगा कि T की जो वैल्यू है वो लेस देन है राइट टाइम स्टैम्प Q से। अगर तो वो लेस होगी देन T नीड्स टू रीड अ वैल्यू ऑफ Q, तो T को उसकी Q की वैल्यू रीड करेगा दैट वाज ऑलरेडी ओवर रिटन, हेंस द रीड ऑपरेशन इज रिजेक्टेड एंड T इज रोल्ड बैक। अगर तो T की वैल्यू लेस होगी तो वो क्या करेगा कि उसका जो ऑपरेशन होगा T1 का वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसको वो रोल बैक कर देगा। इन केस अगर हमारे पास ग्रेटर होता है या इक्वल टू होता है तो क्या होगा कि वो T1 की वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है, और उसका ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवा देगा, और जो उसकी वैल्यू होगी वो वहां पे जाके अपडेट कर देगा। इसी तरीके से हमारे पास जब राइट के लिए ऑपरेशन यूज होगा कि T1 और T2 ने राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, T2 ने भेजी पहले और फिर T1 ने भी भेजी, ठीक है। तो अब असूलन पहले T2 की होनी चाहिए क्योंकि रिक्वेस्ट पहले ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की T2 ने भेजी थी। क्योंकि हमारे पास ट्रांजैक्शन T1 पहले आई थी तो प्रायोरिटी T1 को पहले मिलेगी। अब T1 को पहले नहीं मिल सकती तो वो क्या करेगा कि वो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, वो पहले देखेगा। अगर तो राइट ऑपरेशन के अंदर TS की वैल्यू जो है वो R टाइम स्टैम्प से द वैल्यू ऑफ द Q लेस है, Q that T is producing was needed previously and the system assumed that the value would never be produced. Hence the right operation is rejected and T is rolled back. अगर तो T की वैल्यू हमारे पास लेस देन होगी तो क्या करेगा कि हमारे पास जो Q का ऑपरेशन होगा उसे रिजेक्ट कर देगा, और सॉरी
टी का ऑपरेशन जो होगा उसको रिजेक्ट करके रोल बैक कर देगा। और अगर हमारे पास राइट की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या करेगा वो, देन टी इज अटेम्प्टिंग टू राइट एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्यू, hence this write operation is rejected and t is rolled back। t की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमारे पास अपडेट कर देगा और जो राइट ऑपरेशन होगा उसको रिजेक्ट करके t को रोल बैक कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा कि द राइट ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड एंड w टाइम स्टैम्प इज सेट टू ts, और जो हमारे पास राइट टाइम स्टैम्प q की वैल्यू होगी उसको ts की वैल्यू में सेट कर देगा। करेक्टनेस, timestamp protocol ensure freedom from deadlock as no transaction ever wait। अब इसके अंदर क्या हम लोगों के पास होता है कि करेक्टनेस ये होती है कि हमारे पास डेडलॉक से मतलब डेडलॉक नहीं होता किसी भी ट्रांजैक्शन में और किसी भी ट्रांजैक्शन को वेट नहीं करना पड़ता। द शेड्यूल में नॉट बी कैस्केड फ्री एंड मे नॉट इवन बी रिकवरेबल। और इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो हमारे पास कैस्केड फ्री होता है, ठीक है, एंड रिकवरेबल होता है। ट्रांजैक्शन भी इसमें क्या स्टार्ट होती है, स्मॉलर वैल्यू से स्टार्ट होती है, प्रायोरिटी स्मॉलर वैल्यू जो टाइम स्टैम्प की होती है उससे होती है और लार्ज वैल्यू की तरफ जाती है। अब मैं आपके साथ एल्गोरिथम शेयर करती हूँ। एल्गोरिदम मैंने बुक में से लिए हैं क्योंकि बुक में था, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि एक मैसेज हमारे पास आया, रिपीट वेट फॉर अ मैसेज, उसने मैसेज का वेट किया, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन थी, स्विच किया उसने मैसेज को, यहाँ पे उसने वैल्यूज देखी, ऑपरेशन फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। आफ्टर दैट उसने देखा, उसने केस देखा, देन उसने सारी ट्रांजैक्शन देखी कि किसकी प्रायोरिटी थी, उसके बाद उसने एंड केस कर दिया। इसी तरीके से फर्दर जो हमारे पास थे वो सीक्वेंस के साथ चलते गए। थैंक यू सो मच। फर्दर आई विल कॉल उसामा टू एक्सप्लेन अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, वो ऐड करेगा, मैं करूंगा इसको एक्सप्लेन। सॉरी मैं Assalamualaikum. Now I will present multivariant concurrency control। तो मल्टीवेरिएंट से ही पता चल रहा है कि इसके पास डेटा आइटम्स की मल्टीपल कॉपीज होंगी इस प्रोटोकॉल में, और मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे बिना लॉकिंग लगाए हुए डेटा पे। क्योंकि मल्टीपल वेरिएंट होंगे तो हर यूजर अलग अलग कॉपी पर वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, तो यहाँ पर कोई सिग्नल कॉपी नहीं होगी, तो यहाँ किसी लॉक की जरूरत नहीं होगी। मल्टीवेरिएंट कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो कंकरेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है डेटाबेस की बिना लॉक्स किए हुए डेटा पर। लॉक बेस्ड टेक्निक में या टाइम स्टैम्प में क्या होता था, क्योंकि बाकी ट्रांजैक्शन को वेट करना होता है जब तक के लॉक फ्री नहीं हो जाता डेटा आइटम्स पर। Multivariant concurrency control provide concurrent access to the database without locking the data. It improves the performance of database application in multi-user environment। तो ये टेक्निक जो है उन डेटाबेस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है जिसमें मल्टी यूजर इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी जहां पर मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, उन एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशंस को वेट नहीं करना पड़ता है री रिक्वेस्ट के लिए। तो एप्लीकेशन विल नॉट वेट फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज ऑफ रीड रिक्वेस्ट कैन नॉट रिक्वायर्ड अ लॉक। तो लॉक बेस्ड टेक्निक में क्या होता था कि मल्टी यूजर इन्वॉल्वमेंट की डेटाबेस एप्लीकेशन है, उसमें क्या होता था कि उनको वेट करना पड़ता था बहुत टाइम के लिए जब तक कि दूसरा ट्रांजैक्शन है वो लॉक को अनलॉक नहीं कर देता। तो रीटेक रिक्वेस्ट के लिए भी एप्लीकेशन को बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ता था। Multivariant concurrency control keeps the old variant or value of each data item in the system when the data item is updated। तो multivariant concurrency control में क्या है कि
जितनी भी डाटा आइटम्स हैं उनकी ओल्ड वैल्यू भी सिस्टम में रहती है और जबकि इसकी न्यू वैल्यू भी सिस्टम में रहती है। इट मींस सपोज एक की डाटा आइटम x है में वैल्यू 5 है, तो जब भी इसकी वैल्यू को अपडेट किया जाता है तो अपडेटेड वैल्यू भी रहेगी और उसका ओल्ड वेरिएंट भी रहेगा। There are several variants or values of data items are maintained. Hence, it is called multivariant concurrency control. क्योंकि यहाँ पर एक डेटा वैल्यू की मल्टीपल कॉपीज या वेरिएंट्स को रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसे मल्टीवेरिएंट कंकरेंसी कंट्रोल बोला जाता है। When a transaction writes on data item X, it writes on a new variant and the old variant of the item is retained. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम्स के ऊपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तो राइट जिस पर परफॉर्म कर रहा होता है एक न्यू वेरिएंट पर, और जो उसका ओल्ड वेरिएंट था, जो उसकी पुरानी वैल्यू थी, उसको अलग से मेंटेन किया जाता है। When a transaction issue a react operation in the data items queue and appropriates variant of queue is chosen by concurrency control technique is such a way that serializability of concurrently executed transactions be maintained. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन ऑपरेशन इशू करता है किसी डेटा आइटम्स क्यू पर, फ्रिक्शन को कौन सा डेटा आइटम्स देना है ये डिसाइड करता है concurrency कंट्रोल टेक्निक, जिससे जो सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन कर रही हैं यही डेटा हमारे उसको जो भी वेरिएंट दिया जाए वो उसी के कंपैटिबल हो, उसे जो वैल्यू चाहिए वही प्रोवाइड की जाए, जिससे क्या होगा, कंकरेंसी कंट्रोल या डेटाबेस कंट्रोल रहेगा। System is not working. Here is the idea is that some read operation that would be rejected in the other techniques can still be accepted by reading an old variant of the items to be maintain serializability. तो जहाँ लॉग बेस्ड टेक्निक्स में क्या होता है कि एप्लीकेशंस को वेट करना पड़ता था या उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि अगर डेटा आइटम्स को कोई और ट्रांजैक्शन यूज कर रहा है तो उन एप्लीकेशंस का जो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो इस केस में यहाँ पर ऐसा ही होगा, जो भी एप्लीकेशन या ट्रांजैक्शन रीड की रिक्वेस्ट करता है उसको ओल्डर वेरिएंट जो है उसका प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रहे, वो वाली वैल्यू उसका प्रोवाइड कर दी जाती है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन या एप्लीकेशंस को वेट नहीं करना पड़ता है अपनी रिक्वेस्ट के लिए। अब उसामा इसको आगे कंटिन्यू करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। Let me see this. सामा स्क्रीन शेयर करें प्लीज। Assalamu alaikum everyone. My topic is optimistic algorithms. There are two types of algorithms to handle the transactions. The one is primistic and other is optimistic. In primistic, the validation phase is performed before
writing and reading in database. In optimistic approach, we use validation at the end of writing phase. Before writing phase, because we assume that our transaction will, because we assume that there are the chances of less conflict. Optimistic approach is used where the chances of conflict is very less, or validation done at the last stage of वेल ऑप्टिमिस्टिक एल्गोरिथम में हर जो ट्रांजेक्शन है उसके 5 फेजेस होते हैं जिसमें राइट, एग्जीक्यूट, रीड, एग्जीक्यूट और राइट और वैलिडेशन एंड एंड पे कमिट होता है. वैलिडेशन फेज से पहले एक कॉपी तैयार होती है जो हमने राइट करना है डेटाबेस में, और उसके बाद डेटाबेस में कमिट किया जाता है. हमारी जो सारी ट्रांजेक्शन है उसे हम सब ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, और हर जो सब ट्रांजेक्शन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती है हर साइड पे, और हर साइड पे जो हमारी जो सब ट्रांजेक्शन है उसको वैलिडेशन से पहले हम एक टाइम स्टैम्प हम असाइन करते हैं, और उस टाइम स्टैम्प के दौरान ही वैलिडेशन परफॉर्म की जाती है. वैलिडेशन पीरियड से पहले टाइम स्टैम्प उसको अलाउ किया जाता है. There are 3 rules for this validation in optimistic algorithms. The first rule is that a transaction K is running on a site S, while the other transaction I is coming on that same site S, but they are coming in a serialized way. The transaction timestamp of K is less than timestamp of I. So transaction K will execute first and I will after that. It is serialized way, it is acceptable, and validation will be performed. Our transaction will be valid according to this rule. The second rule is that a transaction as K is running and performs validation phase after reading, executing, and writing, and then validation phase is completed. Commit phase is remaining, and now another transaction has entered into the system, transaction I, that it is in its reading phase. Transaction K will be validated because the copy of that validated write operation will commit after that in database. The transaction in this case, if we are validating this transaction because there is no write and write conflict, transaction is already written, validated, and then another transaction is coming into the system. So they will execute, they will be performed, and they will be considered as a validated transaction on that side. There is third rule that a transaction K is in its reading phase and transaction I arrive in the middle of that reading phase. Both the transactions will be validated because both transactions are running on the same site but accessing different data types or different data modules they need for their transition. So the both will be considered validated and validate for transaction. Global validation. As we know that the distributed database system, we are considering that our transaction is performed on a different sites. The global transaction will be validated with the validation of the local validation of this transaction. If the transaction is locally validated, the local database is maintained and consistent. Then we will consider that the global database will be maintained and consistent. There are few problems with that optimistic approach. One approach is we are not locking our resources. Hence, we are not locking our resources. It means that every transaction will come and use the resources whatever they want. So there is a problem is that if a transaction K was written the data
in at site S. So next transaction is coming into the system. The data and data written by the transaction K should be maintained first and then allow the transaction to perform its task. That is the problem with this automatic problem. That is the problem with optimistic algorithms. And another problem is starvation. This starvation will become huge in a case where we have a longer transaction. For example, if we have a transaction that's required most of the time and that transaction will fail at the end, we have to roll back and then start the validation, then whole transaction will proceed from zero to again. And if that problem again rejected, that transaction again rejected, so the other transactions have to wait for the completion of this transaction. So starvation will become for those who are waiting for in line for this to execute. Thank you. Thank you. Is there any question? Yes, Usama, I have a question. Yeah, you are allowed. ये आपने स्टारवेशन का बताया था, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये किस तरह से स्टारवेशन हो रही है? स्टारवेशन इस तरह से हो रही है कि हमारे पास एक लॉन्गर ट्रांजेक्शन थी जो कि जिसको एक ज़्यादा टाइम चाहिए था। हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं वो लॉक्ड नहीं है। हमारे पास एक लॉन्ग ट्रांजेक्शन आ गई है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। अब वो ठीक है, किसी एक साइड पे वैलिडेट नहीं हो पाती वो ट्रांजेक्शन। जब वो किसी एक साइड पे वैलिडेट नहीं हो पा रही तो उसका मतलब है ग्लोबली वो वैलिडेट नहीं हुई, हमें उसे रोल बैक करना पड़ेगा। जब रोल बैक होगी तो उस पर टाइम लगेगा और जो दूसरी ट्रांजेक्शन है जो उनको फिर वेट करना पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन के हल होने का। अगर ये फिर वैलिडेट नहीं हो पाती तो उनको लॉन्गर वेट करना पड़ेगा। वो ये आप मेरा एक सॉरी मुझे ना एक चीज कंफ्यूज करी है, बड़ी ट्रांजैक्शन से मुराद क्या चीज है? लाइक हम पैसे ट्रांसफर करते हैं दूसरे के अकाउंट में, ठीक है, तो ये बड़ी ट्रांजैक्शन किस किस्म की आप बात कर रहे हैं? मुझे ये चीज क्लियर नहीं हुई सिर्फ। एक्चुअली हम ऑप्टिमिस्टिक में हमने अज्यूम किया हुआ हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे। ओके हमने अज्यूम किया हुआ हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे। तो जब हमने अज्यूम किया हुआ हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे तो हमारे पास जो रिसोर्स था उनको भी हमने लॉक नहीं किया, वो भी ओपन है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ अजम्पशन, तो उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं इसको, स्टारवेशन को। जी हाँ, हमारी पहले अजम्पशन ही है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रही, लेकिन हमारी कोई एक ट्रांजेक्शन आ गई है जिसको टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके, ओके, एक थैंक यू। ट्रांजेक्शन आ गई इसको टाइम लग रहा है तो बाकियों को तो वेट करना पड़ेगा ना, लेकिन हमारी अजम्पशन तो यही है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रही। ओके, गॉट इट मैन, थैंक यू। इज देयर एनी क्वेश्चन? No, then thank you.